गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सीमा श्रीवास्तव आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज इस फर्स्ट चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी क्लास बनेगी उसमें हम ये थर्ड टॉपिक कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, टाइप्स ऑफ चेंजेस। So before I tell you, you just tell me what kind of changes you see around yourself. Have you ever seen some changes around us going on? Like you see seasons are changing, weather is changing. Sometimes your mother must be cooking vegetable. For example, see, this is a cauliflower. You chop it into pieces and your mother makes a delicious cuisine out of it, isn't it? So this is also a change. Now this raw vegetable is changed to a delicious cuisine, and you must be having a big gate on in your house, outside around your house. So you must be getting it painted every year. But every year rainy season comes, then what happens? That paint coating falls off, and you will find some brown coating on the gates. So what is that? That is rust. इसी तरह आप जैसे कभी कभी कुछ आयरन की कील होती है, नेल्स होते हैं, उनको मॉइस्चरस एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जैसे आपकी गेट पे आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। तो ये भी एक तरह का चेंज है। नॉर्मल अच्छी जो नेल्स होती हैं वो ब्राउन, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। हाउ? बिकॉज iron reacts with moisture to form iron oxide. So this is rust. So there is a chemical change going on, taking place. Okay, now I will show some more changes. See, this is a piece of paper. This is paper. I fold it. This is a change. This big sheet of paper has turned to a small size. I can further fold it to make it into a much smaller size. But this is paper. The composition remains the same. So this is a physical change. So wherever a new compound is formed, that is known as a chemical change. But if no new compound is formed and generally the changes are reversible, then that is known as physical change. So folding of paper is a physical change. And I can give some more examples. For example, you go to the kitchen, you see, you keep the milk in summer season for a long time at room temperature. Then what happens? Commonly you have seen that curdling of milk takes place. दूध फट जाता है। उस फटे हुए दूध से आप नॉर्मल अच्छा दूध नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज, मतलब दिस इज इरिवर्सिबल। सो सम केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। हमने खाना पकाया, दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज, बिकॉज पके हुए खाने से हम वापस कच्ची सब्जियां या कच्चा आटा नहीं बना सकते हैं। तो दैट इज व्हाट? दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज. So we can classify the changes around us taking place into 2 categories. So what are these? First one is physical change and second one is chemical change. We are going to tabulate it
How will you differentiate that it is a physical change or chemical change? Basically, whenever a new substance is formed, then it is a chemical change. फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बनाया तो उस कच्ची सब्जी से एक नया प्रोडक्ट बना है, वो वापस हम उस कच्ची सब्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का कंबशन. जैसे यहाँ पे एक आपके लिए पिक लगाई है मैंने, यहाँ पे कोल इज देयर, कोल यानी कोयला, उसका कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा, बर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, देन व्हाट इज फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड. So here you see on left hand side, this is carbon, this is oxygen. What is formed? Carbon dioxide. So this is not same as carbon or oxygen. It is a product of carbon and oxygen. A new substance is formed. So this is a chemical change, right? So wherever you see a new product is formed, a new substance is formed, then it is a chemical change. But changes has taken place, but no new substance is formed. For example, I showed you the example of paper. When you fold it, it is a change, but it is not a chemical change. It is a physical change. Why? This is paper. If you fold it, then also it is a paper, right? We can take some more physical examples of physical changes like this. Ice. You take out the ice from refrigerator at room temperature. What happens? After some times, it melts to water, room temperature. Okay. Now, what is the chemical formula of ice? It is H2O. What is the chemical formula of water? It is again H2O. These both are same compounds. So only the physical change has taken place, one state to other state, solid state to liquid state. So this is a physical change. No new compound is formed. And can we reverse the process? Then the answer is yes, we can reverse this. From water, again, if you keep it in the refrigerator, it will be converted to the ice. So the major differences between physical and chemical changes are, first of all, physical changes are reversible, but chemical changes are generally irreversible. Can you make coal again out of this carbon dioxide? No, we cannot make. So this is an irreversible change. The second difference is, no new substance is formed in physical change. So here you saw ice to water, water to ice. No new substance is formed. So this is a physical change. And one or more new substance is formed, then it is a chemical change. For example, from carbon and oxygen, what is formed? Carbon dioxide. You can take one more example. Rusting of iron takes place in the presence of moisture. What is formed? Iron oxide. This is a rust. This is a new compound formed. So this is again a chemical change. You saw here, I'm talking about this rusting. So this is a chemical change. Cooking, it is a chemical change. Now, third point of difference is, it involves very little or no absorption of energy. Did I require energy to fold this paper? Yes, there was energy required, but very little amount of energy. But if you talk about chemical change, there is an involvement of production and absorption of energy. For example, see, this is a coal. You just light your matchstick, then coal burns, then a large amount of heat and light is produced. So there is involvement of
प्रोडक्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। हमने थोड़ी सी हीट दी और हमें बहुत सारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिली। सो दिस इज केमिकल चेंज। जनरली डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज में जैसे हमने इसे फोल्ड किया तो क्या एनर्जी निकली? नो, नॉट नेसेसरीली कि एनर्जी हमें रिलीज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम थोड़ी सी एनर्जी लगा के हमने इस पेपर को फोल्ड किया लेकिन इससे कोई एनर्जी नहीं निकली, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज में इट यूजली इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कोल के केस में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, melting of wax. This is a piece of candle. If you light it, the wax will melt. So solid wax is converted into liquid wax. So that is a physical change. Boiling of water. It is again, you give a small amount of heat, then water is converted to steam. But steam is again H2O and water is also H2O. So this is a physical change. Now digestion of food. अब फूड है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसको डाइजेशन के बाद उसका कन्वर्जन प्रोटीन की अगर बात करें तो वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। इस डाइजेस्टेड फूड से के अमाइनो एसिड से आप डायरेक्टली फूड नहीं बना सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। Okay, so second topic is completed. Now we are going to study about the balancing chemical equations. So we have to first study these 5 steps for balancing chemical equations. So again we are with the chemical equation iron plus water or moisture gives you iron oxide and hydrogen gas. So how will you balance this chemical equation? सबसे पहले आप मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू 10 seconds. कीप योर पेपर एंड पेन इन द हैंड. Okay, I think all of you are with pen and paper, so we are going to start here. So first of all, make boxes around each formula. अब इस फॉर्मूले में हमने बॉक्स बना दिया. This is not a mandatory step, but we will start from the basic to understand it better. ये 4 compounds हैं. Now second step is start balancing with compound that contains maximum number of atoms. तो यहाँ पे कितने compounds हैं? We have 4 compounds. Okay, or we can say there are 4 substances. We can say there are 4 substances. सबसे पहले हम इस कंपाउंड को देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आयरन है. कितने एटम्स हैं? 1. यहाँ कितने हैं? 3. H2 हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 3. तो यहाँ पे कितने? 3 + 4 3 + 4 7 एटम्स. यहाँ पे कितने हैं? 2. तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस कंपाउंड में है? ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड. तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे पहले ऑक्सीजन देखें 4 है, आयरन 3 है. तो सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे बैलेंस, फिर आयरन को, फिर लास्ट में एक एलिमेंट बचता है हाइड्रोजन. तो इस सीक्वेंस में हम बैलेंस करेंगे. देन द थर्ड स्टेप इज in the compound select element which has maximum number of atoms. So ये हमने ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया इस कंपाउंड में. सबसे पहले ऑक्सीजन. देन इक्वलाइज नंबर ऑफ एटम्स विदाउट अल्टरिंग फॉर्मूला. अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1. तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 4. तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे H2O है तो यहाँ एज अ कोफिशिएंट 4 ऐड करना है. लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर H2O में आप यहाँ 4 लगाते हो
तो दिस इज wrong. Why? This is said that we cannot alter the formula. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, बट यहाँ तो हमें H2O4 मिल रहा है, तो इसको हम गलत कहते हैं. तो इस तरह से नहीं करना है हमें. एज अ कोफिशिएंट यानी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंस विद आयरन, तो यहाँ पे कोफिशिएंट लगाना है. उसके बाद लास्ट स्टेप है वट एवर लेफ्ट बैलेंस अकॉर्डिंगली. हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, फिर आयरन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को. तो हम नेक्स्ट पेज पे स्टेप वाइज देखते हैं कैसे हमने बैलेंस किया. यहाँ हम लिखेंगे साइड, एक टेबल बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को, फिर आयरन को, फिर हाइड्रोजन को. यहाँ लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखा राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, ओनली 1 एटम. ऑन राइट हैंड साइड 4. अब आयरन को देखो, हेयर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं एटम्स, 1. राइट हैंड साइड पे 3. हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड, here it is 2, here it is 2. तो सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को. तो लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ ऑक्सीजन है, इसे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये इक्वेशन क्या है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा. यहाँ 4, यहाँ 4. तो 4 कैसे लगाने को मैंने बताया है, यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट 4 ऐड कर दिया. अब नेक्स्ट बारी किसकी आ रही है, नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी आयरन. बट यहां देखना हमने 4 लगाया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया है. ओके. अब हमें आयरन को बैलेंस करना है. तो आयरन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 है. तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिल जाएगा. ओके. तो 3 से यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट लगा दिया. तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. यहाँ 3, यहाँ 3, आयरन इज बैलेंस्ड. नाउ लास्ट एटम इज, एलिमेंट इज हाइड्रोजन. इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है. अब राइट हैंड साइड पे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिल जाए, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो यहाँ पे हमने 4 कोफिशिएंट लगा दिया. नाउ सी ऑन बोथ द साइड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज बैलेंस. सो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, Fe 3Fe प्लस 4H2O gives you, अब नीचे लिख देते हैं, gives यहाँ जगह कम है, तो Fe3O4 प्लस 4H2. तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके. इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हम उससे पहले यहाँ पे पिछला स्टेप देखते हैं. 6th स्टेप है राइट नोटेशंस G, L, AQ और S. What is this? So G stands for gaseous state, L stands for liquid, AQ stands for aqueous and S stands for solid. ये फिजिकल स्टेट्स के लिए. गैशियस, लिक्विड और सॉलिड तो आपको पता है. एक्वस का मतलब होता है अगर हम कोई भी कंपाउंड वाटर में ऐड करके लेते हैं तो हम AQ एक्वस लगाएंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं इस इक्वेशन में हम इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म. जैसे हमने कोई आयरन के नेल्स ले लिए, तो दैट इज इन सॉलिड फॉर्म. ये वाटर है, ये तो एक्चुअली इट शुड बी लिक्विड, बट आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ये वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है. तो यहाँ पे दिस इज गैशियस स्टेट, दिस इज आयरन ऑक्साइड, दिस इज रस्ट, दिस इज सॉलिड, and hydrogen gas is released, this is G.
So this makes physical states makes the equation more relevant. So हम एक और कुछ और इक्वेशन में प्रैक्टिस करते हैं. Carbon monoxide reacts with hydrogen to form methanol. तो यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकल स्टेट्स लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ इसे बैलेंस करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने. यहाँ पे लिखेंगे साइड, यहाँ पे एलिमेंट. सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम्स किस कंपाउंड में, ये हमें चेक करना है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं. 3, 4, 5, 6 एटम्स हैं. 6 एटम्स में सबसे ज़्यादा क्या है? 4 हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. उसके बाद अकॉर्डिंगली हम किसको बैलेंस कर सकते हैं? कार्बन को कर सकते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को कर सकते हैं. यहाँ पे LHS लिखना है, यहाँ पे RHS. तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 4 है. कार्बन कितना है? 1, 1. ऑक्सीजन 1, 1. हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. सिर्फ हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे. तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 4. तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं. तो ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें फिजिकल स्टेट्स भी दिखाई दे रही हैं. लेकिन एक और चीज़ हम जो ऐड ऑन कर सकते हैं. जैसे ये कब रिएक्शन होता है? 484 प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. So this is a physical condition under which this reaction takes place. So what can we write on arrow? Arrow के हम ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी conditions हो सकती है? First, we can write the catalyst name in presence of which reaction will occur. Second, if sunlight is present, it is a mandatory condition for reaction. You can write temperature. You can write pressure. Right? So you can write the conditions under which the reaction takes place. This makes the equation more relevant. So apart from just balancing the chemical equations, you need to write the physical states and the conditions. For example, you see this reaction. Carbon dioxide plus water gives you glucose, oxygen and water. Can you tell me the name of this reaction? This is a very famous reaction. Obviously, photosynthesis. This reaction is photosynthesis. ये कब होता है? It takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. अब यहाँ पर अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. यहाँ पे लिख दिया हमने साइड, यहाँ लिख दिया एलिमेंट. सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किस कंपाउंड में है? दिस वन. और सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब अगेन सेम प्रोसीजर, LHS RHS. H की वैल्यू 12 है, सॉरी नॉट 12, it is 12 plus 2, 14. On left hand side it is 2. कार्बन कितना है? 6. लेफ्ट हैंड साइड पे 1. ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड 6 plus 2 plus 1, 9. Sorry, again I'm mistaken. It is 6 plus 2 plus 1. It is
जस्ट अ मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ। ये हमने लेफ्ट का राइट लिख दिया है। Here on left hand side, hydrogen is 2. On right hand side it is 14. Carbon on left hand side is 1. On right hand side it is 6. On left hand side oxygen is 3 and on right hand side 9. तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड पे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 14। यहाँ हमने लगा दिया 7। 7 लिखते ही इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये कंपाउंड है। तो क्या होगा? 7, 8, 9। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 7 + 2 ये हो गया, प्लस हम ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली 9 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कार्बन को बैलेंस करना है। वेट, फिर कार्बन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया। तो अगेन देयर इज चेंज इन ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया, लेकिन ये फिर चेंज हो गया है ऑक्सीजन। सी 6 2 जा, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे यहाँ पे? 12 + 7 यानी 19। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 6 7 8 9। तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट कंपाउंड में 6 हैं, सेकेंड में 2 हैं और लास्ट में 1 है। तो 6 7 8 9। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 6 और 7 ये कंपाउंड है, तो इनको हम ऐसे ही हम इसको वेरी करेंगे जो सिंगल एलिमेंट है। तो 6 + 1 होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 7, +2 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का एडिशन 19 हो जाए। तो 7 में 7 दिस शुड बी 19। तो यहाँ से हम इक्वेशन से वैल्यू यहाँ x की निकाल सकते हैं। 19 - 7 इज 12, 12 / 2 इज 6। तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, यानी हम यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं। तो हमें फाइनली एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया है, जिसको हम फिर से लिख देते हैं। 6 CO2 + 7 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives 6 C6H12O6 + 6O2 + H2O. Now this is a balanced equation और यहाँ पे physical states भी आप लिख सकते हैं। So this was the class for balancing the chemical equations and changes around us, like physical and chemical changes. So now it's time for questions. So today we read about physical and chemical changes. तो पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। Classify the following as physical and chemical changes. Boiling of water, what is it? वाटर से स्टीम बनता है, दोनों सेम कंपाउंड है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज अ न्यू कंपाउंड, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन, सो इट इज अ chemical change. P stands for physical and C stands for chemical change. Now respiration. Respiration में अगेन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। So there is a new compound formed. This is a chemical change. Now cutting of wood.
कटिंग ऑफ वुड करने से हमें क्या कोई न्यू कंपाउंड मिलता है? नो. So this is a physical change. This first question is done. Now second question, is cooking of food a physical or a chemical change? Give reasons. Now when you cook the food, some new product is formed. So this is a chemical change. This is not a physical change, this is a chemical change. Right? अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि वाई इज कुकिंग अ केमिकल चेंज. मैंने आंसर आपको बता दिया है. नाउ थर्ड इज स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बैक स्लाइड करते हैं हम. सो ये सबसे पहला फिजिकल चेंज में ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं और केमिकल में ये 3 प्रॉपर्टीज. और की पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखना है. ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि वेदर द चेंज इज फिजिकल और केमिकल. इफ अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड एंड इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, देन इट इज अ फिजिकल चेंज. एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूं. आपको बताना है बर्निंग ऑफ कैंडल ये किस तरह का चेंज है. ये आपको अपनी बुक से रिवाइज करना है, इसका आंसर खोजना है. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. मैं एक हिंट दे देती हूँ. बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. लेकिन कैसे, व्हाट इज फिजिकल चेंज इन दैट, व्हाट इज केमिकल चेंज इन दैट, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. With this, students, we end our class. Then the next topic will be types of chemical reactions. ये हम पढ़ेंगे अपनी next class में. इसी class का next part होगा. Then our chapter 1 will be over. Till then, revise from NCERT. And thank you for joining me. Bye bye.